احتیاط نہ کی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا مشکل وقت آپ کے لیے آنے والا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کرونا نے پھیلنا ہے. ہمارے خیال میں جو پیک ہے وہ جولائی کے آخر میں یا اگست میں آئے گی. ہم جتنا مرضی کہتے ہیں لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں. جولائی اگست میں کورونا ملک میں عروج پر ہوگا. وزیر اعظم کی تنبیہ، وائرس نے پھیلنا ہی ہے، رفتار کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. جب بھی باہر جائیں ماسک لازمی پہنیں. ماسک سے 50% بیماری سے بچا جا سکتا ہے. رواں ماہ مزید 1000 آئی سی یو بیڈز کا بندوبست کریں گے عمران خان. ہزاروں پاکستانی بیرون ملک بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ احسن اقبال کا سوال. یو اے ای، سعودیہ اور دیگر ممالک سے رابطے شروع. 1,22,000 لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. مراد سعید. عمران خان نے طاقتور شوگر مافیا پر ہاتھ ڈالا. ذمہ داران سے ریکوری ہوگی اور سزائیں بھی ملیں گی. مراد علی شاہ سابق صدر آصف علی زرداری کے سہولت کار ہیں. مراد سعید. شریف برادران سے ذاتی لڑائی نہیں، ان کے پیسہ باہر لے جانے سے ملک معاشی بحران کا شکار ہوا. چینی آٹا رپورٹ پچھلے سالوں کی ہے، اس دفعہ گندم بحران نہیں ہوگا. فواد چودھری. پیٹرول بحران حکومتی نظام کے مفلوج ہونے کی نشانی. عوام کو سزا نہ دی جائے، سرکار فوری حل نکالے. تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کا فائدہ بجلی کے نرخ کم کر کے دیا جانا چاہیے. شہباز شریف. پیٹرول کی قلت پر حکام کو ہوش آ ہی گیا. ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کی وجوہات کے لیے کمیٹی قائم. ملوث آئل کمپنیز کا مارکیٹنگ لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے. نوٹیفیکیشن جاری. سپریم کورٹ کا ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹ کھولنے کا حکم واپس. حکومت نے اب تک وبا سے بچاؤ کے لیے قانون سازی نہیں کی. دیگر ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں؟ پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا. چیف جسٹس کے کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. 22 کروڑ آبادی کے لیے صرف 100 لیبارٹریز. 30,000 ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر. جو سامان منگوایا گیا اس کی دستاویزات ریکارڈ پر کیوں نہیں؟ سب کا آڈٹ کرائیں گے. چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس. بڑے سیاستدان بھی کرونا کی لپیٹ میں. شیخ رشید اور شاہد خاقان عباسی مہلک وائرس کا شکار. دونوں رہنماؤں کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گئے. سابق وزیر اعظم اور وفاقی وزیر ریلوے نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. کورونا نے آفت مچا دی. کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز. مزید 65 افراد جاں بحق. اب تک 2067 اموات. پنجاب میں 38,903، سندھ 38,108، خیبر پختونخوا 13,487، بلوچستان میں 6,516 افراد وائرس کا شکار. 34,355 مریض صحتیاب. کرونا بے قابو. ہسپتالوں پر دباؤ بڑھنے لگا. وفاقی حکومت کا جون میں مزید 1,000 آئی سی یو بیڈز فراہم کرنے کا فیصلہ. ایک ہفتے میں 250 وینٹیلیٹرز تقسیم کیے. صوبوں سے مکمل تعاون جاری ہے. اسد عمر. لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا ٹیسٹ کی کٹس ختم. میو، جنا سروسز اور جنرل اسپتال میں سیمپلز دینا بند کر دیا گیا. صلاحیت بڑھنے سے قلت ہوئی. بجٹ فراہم کر دیا گیا ہے. سیکٹری صحت پنجاب.
55 साल से जायद उम्र के अरकान को सेशन में शिरकत की इजाज़त ना दी जाए। अरकान को फेस मास्क और SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेटो का स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को खत। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोबारा बंद करने का इंदिया। SOPs की खिलाफ वर्जी होती रही तो फैसला करने पर सोचेंगे। ट्रैफिक पुलिस भी ताउन नहीं कर रही। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्क भर में कार्रवाइयां। पंजाब में 792 दुकानें सील, 4 सनती यूनिट और 610 गाड़ियां बंद। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में जुर्माने और सजाएं। बलूचिस्तान में 2 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। मुसाफिर एक सीट छोड़कर बैठ सकेंगे। टैक्सी में सिर्फ 3 अफराद को जाने की इजाजत होगी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम होगा। तर्जुमान लियाकत शाहवानी। वज़ीर सेहत पंजाब का सर्विसेज हस्पताल में डॉक्टर सुलेमान अली इफ्तिखार की हलाकत का नोटिस। बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर यास्मिन राशिद। रवां माली साल मुल्की मईशत के लिए तबाही का साल साबित। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और कानकनी की पैदावार मनफी रही। ज़राअत, लाइव स्टॉक, फिशरीज, सर्विसेज सेक्टर भी हदफ पूरा न कर सके। इक्तसादी सर्वे के खदोखाल दुनिया न्यूज़ पर। सदर आरिफ अलवी ने वजारत मैरीटाइम अफेयर्स की वेबसाइट का इजरा कर दिया। आलमी यौम बहर पर मिनिस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। पाकिस्तान को समुद्री तिजारत का हिस्सा बनना चाहिए, अली जैदी। वजीर आला पंजाब से स्पीकर परवेज इलाही की मुलाकात। गलत फहमियां पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। काफ लीग इत्तेहादी जमात साथ लेकर चलेंगे, उस्मान बुस्तार। ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन एहतसाब से नहीं बच सकती। चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के हुक्म पर वजीर आजम को खिराज तहसीन। इमरान खान का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा गैर जानिबदार है, फयाजुल हसन चौहान। और सलीम मलिक ने PCB एंटी करप्शन यूनिट को जवाब जमा करा दिया। फिक्सिंग के इल्जामात झूठे हैं, कभी किसी खिलाड़ी पर तनकीद नहीं की, साबिक क्रिकेटर की गुफ्तगू। इमरान खान ने कोरोना सूरत हाल पर इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में कोरोना मुल्क में उरूज पर होगा। उनकी जानिब से कहा गया कि वायरस ने फैलना ही है, रफ्तार कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब भी बाहर जाएं मास्क लाजमी पहने। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मास्क पहनने से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। अगर हमने एहतियात ना की तो पाकिस्तान भी यूरोप, ब्राज़ील बन सकता है। रवां माह मज़ीद 1000 ICU बेड्स का बंदोबस्त करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और इसी वजह से सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है। मुल्क भी मज़ीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हमने भी लॉकडाउन खोल दिया है। कोरोना ने रहना है, इसने फैलना है, हमें इसी के साथ रहना है, लेकिन इसकी रफ्तार कम करने के लिए हुकूमती सतह पर हम इक़दाम कर रहे हैं और आवाम से अपील करते हैं कि वो एहतियात करें, जब भी बाहर जाएं मास्क लाजमी पहनें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि मास्क से 50% बीमारी से बचा जा सकता है। एहतियात ना की तो पाकिस्तान भी यूरोप, ब्राज़ील बन सकता है। उनकी जानिब से कहा गया कि रवां माह मज़ीद 1000 ICU बेड्स का बंदोबस्त करेंगे। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया है। अगर हमने एहतियात ना की
मैं आज आपको कह रहा हूं कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता कि कोरोना वायरस मुल्क में ख़त्म हो जाएगी। मुश्किलों से हमने जो अल्लाह का करम है कि बहुत ज़्यादा पैसा बड़े कम वक्त में बड़े लोगों को एक शफाफ तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से वो मसले नहीं लोगों के आए जो कि और दुनिया के अंदर आ रहे हैं और गरीब मुल्कों के अंदर आ रहे हैं। मुल्क खोल दिया उन्होंने। सारी जो इस वक्त हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है। पाकिस्तान में कोशिश ये रही है कि ये जो पीक है ये तेजी से ऊपर ना जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाए, ताकि हमारे अस्पतालों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। हमारे ख्याल में जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी, जो पाकिस्तान में जो पूरी पीक है, और उसके बाद नीचे केसेस आ जाएंगे। अब हमारी पूरा जो चैलेंज वो ये है कि अब से लेके जुलाई के आखिर तक हम कोशिश करें कि जब भी हम कारोबार कर रहे हैं, अपील कर रहा हूं कि अपने लिए आपके घर में बुजुर्ग होंगे, इनकी जानें खतरे में। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। हर जगह जब आप बाहर निकलें ये मास्क पहने। साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इसी महीने में 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इंशाल्लाह इसी महीने में पहुंचा देंगे। खबर है लाहौर से, जहां पर कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की किट्स खत्म हो गई हैं। मुश्तबा मरीज कोरोना टेस्ट के लिए निजी लेबॉर्टरीज का रुख करने पर मजबूर हैं। सेक्रेटरी सेहत ये कहते हैं कि बजट फराहम कर दिया गया है और किट्स की जल्द दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाएगा। लाहौर से देखिए बिलाल चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के वार जारी, सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की किट्स अदम दस्तयाब। लाहौर में जनरल और जिना अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए BSL-3 बनाई गई, ताहम टेस्ट किट्स खत्म होने पर मुश्तबा मरीजों को वापस भेजा जाने लगा। मुश्तबा मरीजों को परेशानी का सामना, निजी लेबॉर्टरी से महंगे दामों कोरोना टेस्ट कराने पर मजबूर हो गए। कोरोना के फोकल अस्पताल म्यू और सर्विसेज अस्पताल में टेस्टों के नमूने महकमा सेहत की लेबॉर्टरी में भिजवाए जा रहे हैं। कोरोना लैब इंचार्ज जनरल अस्पताल के मुताबिक कोरोना टेस्ट किट्स गुज़िश्ता रात खत्म हुई। सरकारी अस्पतालों को इब्तदाई तौर पर 100 किट्स दी गईं जो 1 घंटे में खत्म हो गईं। अभी तक नई किट्स नहीं मिली। सेक्रेटरी सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अवान का कहना है कि अस्पतालों में टेस्ट किट्स की दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जा रहा है। अस्पतालों को किट्स खरीदने के लिए बजट फराहम कर दिया। मुल्क भर की बात करें तो कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद 2067 हो गई है, जबकि वायरस से मजीद 4728 अफराद मुतासर होने के बाद मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब तक 34,355 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना का फैलाव मजीद तेज, मुतासरा अफराद की तादाद में मजीद इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 4700